So, good morning, students. In the last class, we were discussing regarding the budget deficits. Okay, and I have told you that we have discussed the meaning of the government budget. The government budget क्या होता है? All these things we have discussed. All right, and I have told you that we can divide government budget into two parts. Okay, government budget के दो part होते हैं. First is the receipts, that is the receipts, and the second part is your payments, or you can call it as expenditure. Government receipts and government expenditure, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो उसको कहीं ना कहीं से पैसा मिलता है, whether they get money from tax revenue or non tax revenue, चाहे टैक्स से पैसे मिले या कोई नॉन टैक्स रिसोर्स हो सकती है, लाइक फीस, फाइन्स एक्सेट्रा, एंड गवर्नमेंट वही पैसा यूज करती है टू इनकर एक्सपेंडिचर इन द सोसाइटी. लोगों पे खर्च करती है. किन चीजों पे खर्च करती है? गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा. बहुत सारी चीजें हैं गवर्नमेंट उन पे खर्च करती है. ऑलराइट, सो आई हैव टोल्ड यू ऑल कि गवर्नमेंट मेक्स एन एनुअल बजट. हर साल गवर्नमेंट का एक बजट बनता है. इंडिया में भी एक बजट बनता है विच इज फॉर द कमिंग ईयर. ये हमेशा ध्यान रखो कि जो बजट गवर्नमेंट बनाती है इट इज फॉर द कमिंग ईयर. दैट मींस अभी जो फरवरी में बजट प्रेजेंट होगा वो होगा 2021-22 ईयर. इस ईयर का 2021 से 2022 तक का बजट प्रेजेंट होगा फरवरी में. Every time, every year, the government makes the budget for the coming year, जो साल आने वाला है. So that is why government proposes some expenditures and estimate various receipts. क्योंकि government को पता नहीं होता है कि आने वाले साल में हमारे पास कितना पैसा आएगा. वो सिर्फ estimate कर सकती है, अनुमान लगा सकती है. That is why in budget there is estimated receipts are there and proposed expenditures are there. Proposed expenditures means government tells the people, in the Lok Sabha government tells that I am going to incur expenditure on various things. हम इन चीजों पे खर्च करेंगे. ठीक है. अब हो क्या सकता है देखो स्टूडेंट्स कि there can be three situations can arise. इनमें से अगर हम receipts और expenditure को देखें, three situations can arise. पहला सिचुएशन ऐसा हो सकता है which is very ऐसा होता नहीं है but it might happen. Okay, that receipts are equals to the expenditure of the government. That means जितना भी गवर्नमेंट को receipts मिला है, जितना भी गवर्नमेंट के पास पैसा आया है through taxes and through other sources, वो सारा गवर्नमेंट ने यूज कर दिया है for expenditure. वो सारा खर्च कर दिया. That means receipts are equals to expenditure. When government receipts are equal to the expenditure, such type of budget is known as the balanced budget. ऐसे budget को हम क्या बोलेंगे? Balanced budget. That means both the sides, receipts and expenditures are equal. This is the balanced budget. And जो अगर दो सिचुएशंस होती हैं that are more normal, ऐसा ज्यादातर होता है which I am going to discuss now. दो सिचुएशन ये हो सकती है, whether एक सिचुएशन ये हो सकती है कि गवर्नमेंट की रिसीट ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो. Okay, that receipts of the government, that means government whatever government is receiving is greater than the expenditure. गवर्नमेंट के पास जितना पैसा आ रहा है टैक्स और नॉन टैक्स सोर्स से वो ज्यादा है और जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है उस पैसे में से वो कम है. सो सच टाइप ऑफ बजट विल बी नोन एज द सरप्लस बजट. ओके, सच टाइप ऑफ बजट विल बी नोन एज द सरप्लस बजट. सरप्लस वी ऑल नो, जब हमारे पास ज्यादा पैसा बचने लगता है दैट सिचुएशन इज नोन एज द सरप्लस. उसी को हम सरप्लस बोलते हैं. सो जब हमारे पास पैसा ज्यादा आ रहा है गवर्नमेंट के पास और खर्च कम हो रहा है, such type of budget will be called as the surplus budget.
And the third situation where government's expenditure is more and its receipts are less. इसमें गवर्नमेंट का खर्च ज्यादा होगा और गवर्नमेंट के पास जो रिसिप्ट्स आ रही होगी वो लेस होगी. Okay, so the receipts of the government, that means whatever government is getting is less than the expenditure that government is incurring. खर्च ज्यादा है गवर्नमेंट का बट गवर्नमेंट को जो रिसिप्ट्स हैं वो कम. Such type of budget is known as the deficit budget. क्या बोलते हैं इनको? We call it as deficit budget and mainly ज्यादातर डेवलपिंग इकोनॉमीज में डेफिसिट ही बजट रहता है. इन इंडिया ऑल्सो हर साल देयर इज डेफिसिट बजट. अब आप क्वेश्चन अराइजेस कि जब हमें पैसा कम मिल रहा है तो हम ये खर्च ज्यादा कहाँ करें? जब हमारी इनकम कम है तो हम ज्यादा खर्च कैसे कर पा रहे? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गवर्नमेंट बोरोइंग्स. गवर्नमेंट पैसा बोरो कर सकती है. किससे बोरो कर सकती है? अपनी कंट्री के अंदर जो बैंक्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है. फॉरेन कंट्रीज से बोरो कर सकती है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ. सो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जहां से गवर्नमेंट पैसा उधार ले सकती है और गवर्नमेंट कैन बोरो. पहला तो गवर्नमेंट बोरोइंग करके, गवर्नमेंट उधार लेके अपना ये ज्यादा खर्च को फाइनेंस करती है. पहला तो ये कर सकती है. सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट कैन रिजॉर्ट टू द प्रिंटिंग प्रेस. दैट मींस गवर्नमेंट कैन आस्क द आरबीआई टू प्रिंट न्यू मनी, टू प्रिंट न्यू करेंसी. ओके, तो वो नई करेंसी थोड़ा बहुत छाप के वो गवर्नमेंट को एज अ लोन देती. और नेवर, ये हमने कभी नहीं बताया है, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब भी करेंसी छपती है ऐसा नहीं गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इतनी करेंसी छपवा ले, ऐसा नहीं हो सकता. अगर ऐसा है तो इतनी रुपये की वैल्यू गिर जाएगी कंट्री में दैट इट विल नॉट बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द अदर फॉरेन एक्सचेंजेस. इसलिए अपनी मर्जी से गवर्नमेंट पैसा प्रिंट नहीं करा सकती. एज अ लोन वो आरबीआई से लेती है जो उसको बाद में चुकाना पड़ता है. इवन गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट कुछ अपनी गोल्ड रिजर्व्स भी गिरवी रखती है आरबीआई के पास. ऑलराइट, सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ बजट्स. बैलेंस बजट वेयर योर रिसिप्ट्स आर इक्वल टू एक्सपेंडिचर. Government receipts are equal to government expenditure. Then second, when government receipts are greater than government expenditure, this is your surplus budget. And third, when government's receipts are less than government's expenditure, deficit budget. But the major question I've told you, government deficit budget को finance कैसे करेंगे? Okay, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं. अगर हम लोग अपना एग्जांपल लें कि हमारी इनकम 50,000 है, अगर हमारी इनकम 50,000 है और हमें 1 लाख रुपए खर्च करने हैं, हम कैसे कर सकते हैं? हम बोरो कर सकते हैं, हम कुछ लोन लेंगे किसी से, या मेरा कोई असेट हो सकता है उसको हम बेच सकते हैं. ओके, सो गवर्नमेंट ये सब करके अपना जो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, जो डेफिसिट है, उसको फाइनेंस करती है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो वन थिंग मोर स्टूडेंट्स दैट वी विल सी that surplus budget and deficit budget ये किन situations में use government कर सकती है. For example, there is recession in the economy. Okay, जो अभी चल रहा है, there is a recessionary pressure in the economy. That means there is deficiency in demand. लोगों के पास इतनी इनकम नहीं है, लोगों की इनकम कम है. इनकम कम होने से मार्केट में डिमांड कम होती है, और जब मार्केट में डिमांड कम होगी तो लोग कम खर्च करेंगे, और जब लोग कम खर्च करेंगे तो जिस मार्केट में बिजनेस पर्सन है वो भी इतना सप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो दैट द डिमांड इन द मार्केट इज लेस. सो फॉर होम दे शुड सप्लाई, फॉर होम दे शुड सप्लाई. सो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कैन यूज डेफिसिट बजट ओवर हियर. गवर्नमेंट कुछ अपने रिसोर्सेज यूज करके, पैसा बोरो करके या कुछ भी करके डेफिसिट बजट बनाएगी जहां पे वो खर्च ज्यादा कर पाए. क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का मेजर एक्शन क्या होना चाहिए कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा रहे, सो दैट दे आर एबल टू इनकर एक्सपेंडिचर, वो खर्च कर पाए और मार्केट फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ पाए. वो कब होगा? जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी इकोनॉमी में. ऑलराइट, गवर्नमेंट ही एक पूरी इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर ला सकती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत अनगिनत रिसोर्सेज होते हैं. ऑलराइट, सो इन द केस ऑफ रिसेशन गवर्नमेंट वुड लाइक टू यूज द डेफिसिट बजट ताकि ज्यादा खर्च करके गवर्नमेंट लोगों को रिसेशन से बाहर निकाल सके, उनकी इनकम को इंक्रीज कर सके.
Alright, whereas if there is inflation in the economy, अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है, महंगाई क्यों होती है हमने बताया था, क्योंकि एक्सेस डिमांड, जब लोग बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने लगते हैं, डिमांड करने लगते हैं, तो व्हाट हैपेंस दैट देयर इज अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइसेस, प्राइसेस बहुत हाई होने लगते हैं, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। तो यहाँ गवर्नमेंट चाहेगी कि लोगों के पास कम से कम पैसा रहे, so that they are not able to incur that much expenditure which must push the prices more up in the future. तो यहाँ पे गवर्नमेंट कैन यूज द सरप्लस बजट, जब वो अपने पास ज्यादा पैसा रखेगी और खर्च कम करेगी, so that पब्लिक तक पैसा कम पहुंचे और पब्लिक भी कम खर्च करे, and the situation of inflation can be tackled. Alright, so in case of surplus budget, in case of inflation, the government uses the surplus budget so that they are able to reduce the expenditure that is being incurred by the people, and what will happen? The aggregate demand will also reduce in the market. Then, in case of your recession, the government uses deficit budget so that the government is able to incur more and more expenditure, and there is more money in the pockets of the people, and they are able to incur more expenditure, ज़्यादा aggregate demand हो और economy फिर से अपने track पे आ सके। So ये सब गवर्नमेंट से कुछ एप्लीकेशंस होते हैं इकोनॉमी को ट्रैक करने में। Okay, so students, I think there is no problem in these three types of budget. Is there any problem in balanced, surplus or deficit budget, students? Yes, all those students who are online, do you have any problem? No? Online students, is there any problem in any of the balanced budget, surplus or deficit budget? Shall I move forward? Abdul Bilal, unmute your mic. Abdul Bilal, unmute. जो mic नहीं खोलेगा, I will remove them. You are in the class. You are not here to watch a movie that you are sitting mum in the class. Abdul Bilal, switch on your mic. ठीक है, I am removing you. If you are not answering, then no need to attend the class. Larab, unmute your mic. Larab Hussain. Yes, sir. Larab Hussain. Yes, sir. Are you there? Yes, sir. Speak loudly, I can't hear you. Yes, sir. Okay. Can you tell me what is a deficit budget? You tell me what is a deficit budget? No, sir. Speak up. No, sir. Why no? You are sleeping in the class. That is why no. इस सिंपल सा टॉपिक नहीं समझ पा रहे हो तो और क्या समझोगे? It is a very simple topic. अगर तुम्हारी इनकम कम है और तुम्हारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तुम्हारा खर्च ज्यादा है, तो तुम्हारा बजट डेफिसिट में होगा। सिंपल अकाउंट्स, ये तो किसी को भी पता होना चाहिए। Lara, is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear or not? Yes, sir. Okay. So now students, we have to discuss various types of, अब लोग ने डेफिसिट बजट पढ़ा, अब कुछ डेफिसिट्स के टाइप्स होते हैं। There are three types or three measures of deficit in India. इंडिया में 3 टाइप्स के डेफिसिट गवर्नमेंट मेजर करती है। That we will discuss now. It is very important, okay? कि बाकी टॉपिक we are going to discuss. It is very important for your exams. They always ask in short answer में भी पूछ सकते हैं, long में भी पूछ सकते हैं, alright? So it is very important. Mark it as very important, everyone. So types of
इनको हम measures of deficit भी बोल सकते हैं. And we will discuss all these three types of budget deficits or types of deficits in the context of the India only. India में जिन तीन types of deficits को measure करते हैं उन्हीं को ही we will discuss. First is your revenue deficit. The first type of deficit is your revenue deficit. Alright, students, you all have told you that government divides the budget into two parts, revenue budget and capital budget. तो government होती है वो अपने budget को दो parts में divide कर देती है, revenue budget and capital budget. Revenue budget में there are two types of things, revenue receipts and revenue expenditure. Okay, in your revenue budget there is revenue receipts and revenue expenditure. तो जब भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और रेवेन्यू रिसीप्ट्स कम होगी, दैट डेफिसिट विल बी नोन एज द रेवेन्यू डेफिसिट. जब रेवेन्यू बजट में गवर्नमेंट का डेफिसिट होगा, दैट सिचुएशन विल बी नोन एज द दैट डेफिसिट इज नोन एज द रेवेन्यू डेफिसिट. So what will be the formula? Revenue expenditure minus revenue receipts. Right, everyone? Revenue expenditure minus revenue receipts. So, and how can we define it? That excess of revenue expenditure over revenue receipts is known as the revenue deficit. इसमें क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है. व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो डे टू डे खर्च करती है. ओके, जिनसे वो खर्च जिनसे कोई ना ही असेट बनता है ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है, बट डे टू डे जो खर्च करना पड़ता है उसको, दैट इज मोर, वो ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर लेस. दिस सिचुएशन इज नोन एज द रेवेन्यू डेफिसिट. Alright, it is very simple to understand. Then we move on to fiscal deficit. ये सबसे important होता है. तो तुमने काफी बार इसका नाम भी सुना होगा, fiscal deficit, because it shows the real picture of the government's financial position. इसीलिए इसको बहुत important समझा जाता है किसी भी इकोनॉमी को. Fiscal deficit. ये क्या होता है? हम अपना पूरा बजट, हमारे बजट के दो साइड्स हैं, ठीक है, रेवेन्यू एंड कैपिटल. ठीक है, रेवेन्यू में हमारे क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. और कैपिटल में क्या होता है हमारा? सेम, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो अब जब गवर्नमेंट को अपना फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपने टोटल बजट, मतलब रेवेन्यू प्लस कैपिटल बजट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इनको ऐड करती है. इसको बोलती है टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर. ओके, इट इज नोन एज टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर एंड सबट्रैक्ट कर देती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, दैट मींस टोटल बजटरी रिसिप्ट्स से. बट एक चीज एक्सक्लूड कर देती है. कैपिटल रिसिप्ट्स में हमारी एक चीज होती है बोरोइंग्स, जो हम लोगों से लोन लेते हैं. बोरोइंग्स गवर्नमेंट इसको एक्सक्लूड करके फिस्कल डेफिसिट दिखाती है. क्यों एक्सक्लूड करके फिस्कल डेफिसिट दिखाती है? क्योंकि जो बोरोइंग्स है वो तो हमारी लायबिलिटी होती है, वो हमारा डेट दिखा रहा है, हमारा डेट बर्डन दिखाता है. तो अगर हम उसको भी फिस्कल डेफिसिट में लेने लगे तो इट विल नॉट शो द क्लियर पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी. ये इकोनॉमी का क्लियर पिक्चर नहीं दिखाएगा. ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें, पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लें कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू, एवरीवन राइट द फॉर्मूला, दैट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर, टोटल बजटरी expenditure
एक्सपेंडिचर, टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर में हमारी दोनों चीजें आ जाती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, दोनों चीजें आ जाती हैं। ठीक, तो टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस इनमें से हम दोनों रिसिप्ट्स को, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स and minus capital receipts. But we will take care of one thing, हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब हम कैपिटल रिसिप्ट्स माइनस कर रहे हैं तो we will exclude borrowings from this. We will exclude borrowings. जो भी हमने लोन लिया होगा वो हम इसमें से हटा देंगे। और क्यों हटाएंगे? so that हमारा जो डेफिसिट है उसकी हमें क्लियर पिक्चर मिल जाए, because loan is a debt, it is an obligation, it is a liability that has to be paid in the future. That is why we exclude borrowings from the fiscal deficit, and it is the most important measure of the government's deficit. All right, then comes your last, primary deficit. इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, primary deficit, the third deficit is your primary deficit. What is primary deficit? हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। That means whatever loan we have taken, we have to pay the interest on them. जो भी हमने लोन लिया है उस पे हमें इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा, ठीक है? उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, then we get our primary deficit. So these three measures, first your revenue deficit, second fiscal deficit, and third primary deficit. इनकी मीनिंग हमें पढ़नी है विद फॉर्मूला जो हम लोग ने पढ़ ली है, एंड देयर इम्प्लीकेशंस। दैट मींस अगर ऐसा इकोनॉमी में होता है तो इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मूविंग ऑन टू द इम्प्लीकेशंस एंड इम्पैक्ट्स, लेट अस अंडरस्टैंड दिस फिस्कल डेफिसिट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेके फिस्कल डेफिसिट को डिस्कस करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट का टोटल बजटरी जो एक्सपेंडिचर है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो लाख करोड़ में होता है, ठीक है? लाख करोड़ में होता है, दैट मींस ट्रिलियंस में होता है, बिलियंस ट्रिलियंस में होता है। बट एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, ठीक है? टोटल क्या होता है? टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल minus revenue receipts minus capital receipts excluding borrowings. Remember that, write it somewhere that we will not include the borrowings. All right, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is around 1 lakh, and government's capital expenditure, it is around 8 lakh, and government's revenue receipts, government जो revenue receipts है, it is equals to your 6 lakh, and गवर्नमेंट के जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, गवर्नमेंट्स कैपिटल रिसिप्ट्स आर इक्वल टू 15 lakh, take it 10 lakh, but it includes borrowing of 6 लाख रुपीस। एक हमने ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया है, ये कोई बुक में क्वेश्चन नहीं दिया है, ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपीस है, ओके?
और गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर 8 लाख रुपीस है, रेवेन्यू रिसिप्ट 6 लाख है, कैपिटल रिसिप्ट्स आर 10 लाख एंड इसमें इंक्लूडिंग है क्या बोरोइंग्स कितनी 6 लाख रुपीस। ठीक है, तो व्हेन वी विल कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट, when we will calculate the fiscal deficit, what is the formula? Total budgetary expenditure, पूरे बजट का जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये टोटल कितना होगा 1 लाख प्लस 8 लाख, नहीं इसको हम 10 लाख ले रखेंगे। ठीक है, 10 लाख प्लस 8 लाख 18 लाख, 18 lakh subtract revenue receipts which is 6 lakh rupees, and then what we will do, we will subtract capital receipts but excluding borrowings. So capital receipts 10 lakh है, इसमें borrowings 6 लाख है, तो इसको हटा के कितना बचा 4 लाख, 4 लाख हम इसमें से माइनस करेंगे। So what will be the answer? 18 lakh minus 6 plus 4 हमारा 10 लाख, 8 लाख रुपीस। गवर्नमेंट का कितना डेफिसिट आ रहा है 8 लाख, 8 लाख रुपए। दैट मींस गवर्नमेंट को इतना एक्सेस में खर्च करना है। बट अगर हम यहाँ पे बोरिंग्स ना हटाएं तब क्या आंसर आए देखो, अगर हम बोरिंग्स ना हटाएं तो यहाँ पे हमें पूरा 10 लाख मिलता है, और क्या आंसर आ जाएगा 2 लाख, है ना, 16 लाख 18 लाख, 2 लाख आंसर। तो गवर्नमेंट तो बड़ी खुश हो जाएगी कि हमें कम घाटा हुआ, पहले कितना हो रहा था, पहले 4 लाख का हो रहा था, यहाँ क्या देखो 4 लिए थे ना, 8 लाख का हो रहा था, पहले 8 लाख का उसको घाटा हो रहा था, अब 2 लाख का हो रहा है, तो खुश हो जाएगी गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं पता, ये गवर्नमेंट ये तो समझे कि ये जो 10 लाख है इसको उधारी भी है, हम उधारी के साथ अपना घाटा दिखा रहे हैं, उधारी तो हमें वापस करनी है फ्यूचर में, तो इसको हटा के हम अपना घाटा दिखाए, डेफिसिट दिखाए, तब रियल पिक्चर दिखेगी, हमारी असली पिक्चर जब दिखेगी जब हम अपनी उधारी हटा देंगे। उधारी के साथ इनकम दिखाओगे तब तो बहुत बड़ा दिखेगा भाई, 10,000 इनकम है तुम्हारी, तुमने 50 लाख रुपए किसी से उधार लेनी है, तुम कह दो मेरी 50 लाख 10,000 इनकम है, ये तो सही नहीं है ना, क्योंकि ये 50 लाख में फ्यूचर में पे करना है। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को बोलते हैं इट इज अ वेरी बेस्ट इंडिकेटर जिसमें हम बोरोइंग्स हटा के दिखाएंगे। अब गवर्नमेंट को रियल पिक्चर पता चलेगी कि हमारा 8 लाख रुपीस का डेफिसिट है। This is the real picture. That is why fiscal deficit is said to be a very perfect indicator of deficit. हमेशा पेपर्स में पढ़ोगे तो फिस्कल डेफिसिट का ही नाम आता है, रेवेन्यू और प्राइमरी का नाम नहीं आता, और गवर्नमेंट इस पे फोकस भी करती है। Is it clear to everyone over here? Any problem? Have you all written all the 3 formulas of fiscal deficit, revenue deficit, and primary deficit? Saif, have you written? Saif, unmute your mic. Yes, sir. Yes. You tell me the formula of primary deficit now. Tell me the formula of primary deficit. सर प्राइमरी नहीं, रेवेन्यू और फिस्कल। अच्छा, फिस्कल बताओ ना। सर टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीव्ड। अच्छा, इससे पहले भी तो कुछ है कैपिटल रिसीव्ड से। टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड्स माइनस कैपिटल रिसीव्ड्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। Is it clear now? Yes, sir. Good. Rishabh, you tell me the formula of revenue deficit. Rishabh Agarwal, switch on the camera.
And unmute your mic. Sleeping. Pranav Kapuria. Yes, sir. जाग रहे हो. You tell me what is the formula of revenue deficit? बुक देखने लगते हो क्या तुम लोग? Tell me the formula of revenue deficit. Who would like to tell? Pooja, you tell? Yes, sir. You tell me रेवेन्यू that? एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डेफिसिट का सर बताएं. हाँ, revenue deficit. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट. Okay, good. And who will tell about primary deficit? What is the formula of primary deficit? Zoya, you tell? Zoya? Zoya is sleeping. Kesar, you tell? What is the formula of primary deficit? Kesar? Sir, deficit minus interest payments. Which deficit minus interest payments? Fiscal deficit minus interest Fiscal payments. deficit minus interest payments. All right, good. So now, students, the last part is that we have to discuss regarding the implications of these deficits. हमने बताया था when I gave the project on this topic, I have told you all these three types of deficits they have common implication. इन तीनों के जो effect होंगे, impact होंगे, common ही होते हैं economy में. All right, they share common impact on the economy. क्या impact होगा? First thing देखो, जब भी deficit हो रहा है government को, तो how government finances this deficit? इस कमी को government कैसे पूरा करती है? By taking loans and borrowings. कहाँ से लेती है? अपनी country के अंदर से भी loans ले सकती है, country में जो banks है उनसे loan ले सकती है, और they can take loans from other foreign countries. They can take loans from World Bank, other foreign institutions, World Bank, IMF. तो गवर्नमेंट के ऊपर ये बर्डन बन जाता है. It creates a burden on the shoulder of the government, क्योंकि they have to pay the debt in the future. It is a legal obligation. अगर वो लोन नहीं रीपे करते हैं, तो मार्केट में उनकी गुडविल कम हो जाएगी. उनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है, उनकी जो मार्केट में या वर्ल्ड वाइज जो इज्जत है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, सो वो हिट करेगी, कम होगी. कोई उनको फिर लोन देने को रेडी नहीं होगा. Alright, so it creates a burden on the shoulder of the government. पहले तो principal amount का burden बनता है, क्योंकि whenever we take any loan, हम principal amount लेते हैं और उस पे interest भी हमें देना पड़ता है. So first burden is of the principal amount. All the three types of deficits, they will lead to the burden of debt. They will lead to the burden of loan on the shoulders of the government. Secondly, they will lead to the burden of the interest payments. हमें फ्यूचर में इंटरेस्ट पे करते रहना पड़ेगा जब तक ये लोन चलेगा. ओके. एंड थर्डली, आई हैव टोल्ड यू दैट गवर्नमेंट जब ज्यादा खर्च करने लगती है, ओके, बिकॉज़ डेफिसिट में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इज इनकरिंग मोर एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट खर्च ज्यादा कर रही है और जो गवर्नमेंट पास रेवेन्यू आ रहा है दैट इज लेस. सो इट माइट हैपन दैट इट लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, the aggregate demand will increase, and when the aggregate demand increases, it might push the prices upwards. इससे prices market में बढ़ सकते हैं, तो inflation भी हो सकता है. So three major effects, three major impacts जो लिखने हैं तुम्हें. First point, it leads to the burden on the shoulders of the government as they have to pay the debt, which is a legal obligation. Secondly, it leads to the creation of burden of the interest payments that they have to pay. Thirdly, it might lead to the inflationary pressure in the economy. 3 points, very important. And चाहे जिसका भी implication पूछा जाए, whether
they ask the implication of revenue deficit, fiscal deficit, or primary deficit. You write these three only. All right. They share common implications. Is it clear to everyone? Yes, students who are online,